Today we are going to start with the normal forms for context-free grammar. Okay, so there are two types of normal forms for context-free grammar, that is Chomsky normal form and Grebich normal form. So first we'll start with the Chomsky normal form. So what is Chomsky normal form? A context-free grammar without epsilon production is said to be in CNF. For context-free grammar, short form is CNF. A context-free grammar without epsilon production is said to be in CNF if every production of the form A produces BC or A produces A, where ABC belongs to set of variables and A belongs to variable and small a belongs to terminals. ओके, मीन्स चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कैसे फॉर्म होना चाहिए? एक वेरिएबल प्रोड्यूसेस टू वेरिएबल्स और वन वेरिएबल प्रोड्यूसेस टर्मिनल. एक तो कैसे होना चाहिए? वन वेरिएबल प्रोड्यूसेस टू वेरिएबल्स और वन वेरिएबल प्रोड्यूसेस टर्मिनल्स. ऐसे फॉर्म होना चाहिए, तो उसे क्या बोलते हैं? चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म. ठीक है. The grammar should have no useless symbols. ठीक है. So every production without epsilon production can be converted into an equivalent CNF form. Okay, so we will see the algorithm for this. So in algorithmic step, first step is that we have to eliminate means we have to simplify the grammar. So in simplification of grammar, what it consists of? It consists of elimination of epsilon production, unit production and useless symbols from the grammar. So this is the first step while converting context-free grammar to Chomsky normal form, that is CFG to CNF. Okay. Now second step is what? Every variable deriving a string of length 2 or more should consist only of variables, right? That is production of the form A produces alpha, then determinant of alpha is greater than equal to 2. अल्फ़ा शुड कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स. मीन्स ये जो प्रोडक्शन हम लोग डिराइव कर रहे हैं, ए प्रोड्यूसेस बी सी, दिस फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, सपोज दिस इज़ द प्रोडक्शन ए प्रोड्यूसेस V1 V2 A3 A V3 B V4. ठीक है. यहाँ पे जो प्रोडक्शन है उसके प्रोडक्शन में वेरिएबल एंड टर्मिनल्स का कॉम्बिनेशन है, राइट. बट अकॉर्डिंग टू द स्टेप 2 ऑफ CNF क्या होना चाहिए? उस प्रोडक्शन क्या डिराइव करना चाहिए? सिर्फ स्ट्रिंग ऑफ वेरिएबल्स डिराइव करना चाहिए, राइट. तो वो स्ट्रिंग ऑफ वेरिएबल्स में हमें क्या करना है? यहाँ पे कन्वर्ट करना है. ठीक है. सो हाउ वी कैन कन्वर्ट इट इनटू द सेट ऑफ वेरिएबल्स? दैट इज so how we can convert it into the set of variables? That is for variables for terminals we will add variables like this. For a variable we will add CA variable. So for B terminal we will add CB variable. Okay, so and we have to add that two more production over here, that is CA produces A and CB produces B. ठीक है. So likewise we will convert variable and terminal combination into only set of variables. Okay. Now third step is that every production deriving 3 or more variables can be broken into cascade of production. So each deriving a string of 2 variables. क्योंकि हमारा जो भी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म है उसमें क्या चाहिए? हमें राइट हैंड साइड में सिर्फ 2 ही वेरिएबल चाहिए, लेकिन राइट हैंड साइड में 2 या उससे ज़्यादा वेरिएबल है, तो उससे क्या करना है? हमें कास्केडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है. तो कास्केडिंग ऑपरेशन हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, if the production is of the form A produces x1 to xn, so we'll add some more variables for cascading so that it is converted into the length of 2. ठीक है. जैसे A produces यहाँ से x1 लेंगे, उसके साथ C1 वेरिएबल ऐड करेंगे फॉर कास्केडिंग. अगर यहाँ पे C1 ऐड किया है तो नेक्स्ट प्रोडक्शन स्टार्ट्स विद द C1 प्रोड्यूसेस, यहाँ से फिर से एक वेरिएबल उठाएंगे
ओरिजिनल प्रोडक्शन से x2 और C2 से उसे कास्केड करेंगे, C2 को फिर से एक्सटेंड करेंगे, C2 प्रोड्यूसेस x3 C3, x3 यहाँ से लेंगे, राइट. सो लाइकवाइज अप टू Cn-2 प्रोड्यूसेस xn-1 xn. क्लियर. सो दिस इज़ द अल्गोरिदम फॉर CNF. सो हम लोग क्या करते हैं, दिस अल्गोरिदम विल अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल. सो विल टेक वन एग्जाम्पल. सो सी हियर, कन्वर्ट द ग्रामर गिवन बिलो टू इट्स इक्विवेलेंट CNF फॉर्म. ठीक है. सो ये ग्रामर गिवन है, S प्रोड्यूसेस PQP, P प्रोड्यूसेस 0P और इप्सिलॉन, Q प्रोड्यूसेस 1Q और इप्सिलॉन. ठीक है. तो अब इसके सॉल्यूशन में स्टेप 1 क्या है, फर्स्ट इज़ द सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर, राइट. तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर में क्या आता है, एलिमिनेशन ऑफ, फर्स्ट स्टेप इज़ व्हाट, एलिमिनेशन ऑफ इप्सिलॉन प्रोडक्शन. तो इसमें इप्सिलॉन प्रोडक्शन प्रेजेंट है. तो हमने ये देखा था कि लास्ट लेक्चर में सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर कैसे करते हैं, राइट. सो देयर आर 3 स्टेप्स, एलिमिनेशन ऑफ इप्सिलॉन प्रोडक्शन, यूनिट प्रोडक्शन एंड यूजलेस सिम्बॉल्स. तो फर्स्ट विल एलिमिनेट द इप्सिलॉन प्रोडक्शन, राइट. सो इप्सिलॉन प्रोडक्शन एलिमिनेट करने के लिए हम लोग फर्स्ट क्या फाइंड आउट करते हैं, नलेबल सिम्बॉल्स फाइंड आउट करते हैं. तो नलेबल सिम्बॉल्स मीन्स व्हाट, जो वेरिएबल इप्सिलॉन को डिराइव कर रहा है, दैट इज़ द नलेबल सिम्बॉल्स. ठीक है. तो जैसे यहाँ पे P प्रोड्यूसेस इप्सिलॉन, तो P नलेबल हो गया, Q प्रोड्यूसेस इप्सिलॉन, इसीलिए Q भी नलेबल हो गया. नाउ S प्रोड्यूसेस PQP मीन्स ये दोनों नलेबल है, इसीलिए S भी नलेबल हो गया. सो PQS ऑल 3 वेरिएबल्स आर नलेबल. ठीक है. अगर ये है तो हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेटिंग इप्सिलॉन प्रोडक्शन विल गेट द सेट ऑफ प्रोडक्शन एज P1. ठीक है. तो हम लोग इसे एलिमिनेट कैसे करते हैं, इप्सिलॉन प्रोडक्शन को हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, S प्रोड्यूसेस PQP, राइट. और हम लोग क्या करते हैं, इसके जगह पे इप्सिलॉन डालते हैं, एक एक वेरिएबल के जगह पे, राइट. सो अगर हम लोग लास्ट वेरिएबल के जगह पे इप्सिलॉन डालते हैं तो क्या रहेगा, PQ रहेगा, राइट. नाउ फर्स्ट P के जगह पे इप्सिलॉन डालते हैं तो क्या रहेगा, QP रहेगा, राइट. और ओनली Q के जगह पे इप्सिलॉन डालते हैं तो क्या रहेगा, PP रहेगा, राइट. Q के जगह पे इप्सिलॉन डालते हैं तो क्या रहेगा, PP रहेगा. ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन करके देखते हैं हम लोग, राइट. नाउ फर्स्ट PQ के जगह पे रखते हैं तो सिर्फ P रहेगा, और PP के जगह पे रखते हैं तो क्या रहेगा, Q रहेगा. और कोई कॉम्बिनेशन यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, नहीं. सो दिस इज़ हाउ कि यहाँ से अगर इप्सिलॉन हटाते हैं तो ये हो जाएगा एलिमिनेट करने के बाद, राइट. सेम यहाँ पे 0P और P के जगह पे इप्सिलॉन डालते हैं तो क्या होगा, 0. सेम Q प्रोड्यूसेस 1Q और Q के जगह पे इप्सिलॉन डालते हैं तो क्या होगा, 1. तो दिस इज व्हाट द प्रोडक्शन दैट वी विल गेट आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ इप्सिलॉन प्रोडक्शन, राइट. ठीक है. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, एलिमिनेट यूनिट प्रोडक्शन. यूनिट प्रोडक्शन है इसमें प्रेजेंट, यस. कौन से यूनिट प्रोडक्शन, 2 है, S प्रोड्यूसेस P एंड S प्रोड्यूसेस Q. दीज आर द 2 यूनिट प्रोडक्शन प्रेजेंट इन दिस प्रोडक्शन. ठीक है. तो आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ दिस यूनिट प्रोडक्शन हम लोग कैसे एलिमिनेट करते हैं यूनिट प्रोडक्शन. तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे P के जगह पे P का पूरा प्रोडक्शन डालते हैं एंड Q के जगह पे Q का पूरा प्रोडक्शन डालते हैं, और इस वे से हम लोग उसे एलिमिनेट करते हैं. तो प्रोडक्शन P2 क्या हो जाएगा देन, S प्रोड्यूसेस PQP एज इट इज़ रहेगा, PQ भी रहेगा, QP भी रहेगा, और PP भी एज इट इज़ रहेगा, राइट. लेकिन P के जगह पे अभी क्या चला जाएगा, उसका प्रोडक्शन, दैट इज़ 0P और 0, एंड दिस इज़ फॉर P. एंड Q के जगह पे क्या चला जाएगा, 1Q और 1. क्लियर. सो ऐसे वैसे हम लोग यूनिट प्रोडक्शन हटा देंगे, ये प्रोडक्शन दोनों एज इट इज़ रहेंगे. क्लियर. सो अभी इसमें यूजलेस सिम्बॉल्स प्रेजेंट है क्या, नहीं है. सो हमने क्या कर दिया, स्टेप 1 कंप्लीट कर दिया, सिंप्लीफिकेशन ऑफ ग्रामर, राइट. नाउ नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, एवरी प्रोडक्शन, दैट इज एवरी सिम्बॉल अल्फा इन द प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म
A produces alpha with alpha determinant of alpha is greater than equal to 2 should be a variable. मीन्स राइट हैंड साइड के जो भी है वो क्या होने चाहिए, वेरिएबल्स होने चाहिए. प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड में क्या होने चाहिए, सारे वेरिएबल्स होने चाहिए, राइट. सो अगर वो नहीं है तो हम लोग उसे कन्वर्ट करते हैं, राइट. सो दिस कैन बी डन बाय एडिंग टू प्रोडक्शन. जैसे यहाँ पे जो है 0p एंड 1q ये वेरिएबल है क्या, नहीं है. वेरिएबल एंड टर्मिनल का कॉम्बिनेशन है, तो इसे हमें कन्वर्ट किस में करना है, वेरिएबल्स में. इसीलिए हम लोग वो ये दो प्रोडक्शन ऐड करते हैं. जैसे 0 के लिए हम लोग क्या डालते हैं, C0 एंड 1 के लिए क्या डालेंगे, C1. क्लियर. सो द सेट ऑफ प्रोडक्शन आफ्टर चेंजेस इज गिवन बाय P3, राइट. तो क्या हो जाएगा, एज प्रोड्यूसेस PP तक एज इट इज़ रहेगा. 0p के जगह पे क्या चला जाएगा, 0 के जगह पे C0p हो जाएगा और 1 के जगह पे C1 हो जाएगा, राइट. सेम यहाँ पे 0 के जगह पे C0, 1 की जगह पे C1 और ये दो प्रोडक्शन यहाँ पे ऐड हो जाएंगे. C0 प्रोड्यूसेस 0 एंड C1 प्रोड्यूसेस 1. क्लियर. तो ये हो गया सेकेंड स्टेप. थर्ड स्टेप में उसे क्या करते हैं हम लोग, कन्वर्ट करते हैं CNF फॉर्म में. CNF फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं मीन्स व्हाट, राइट साइड ऑफ द प्रोडक्शन शुड कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 वेरिएबल्स और सिंगल टर्मिनल, राइट. तो उसके टर्म में हमें उसे कन्वर्ट करते. तो यहाँ से ओरिजिनल प्रोडक्शन एंड इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इन CNF फॉर्म, ऐसे हमने एक टेबल बनाया, ठीक है. सो ओरिजिनल प्रोडक्शन कौन से लेते हैं, सपोज S प्रोड्यूसेस PQP. तो अभी ये है क्या, राइट हैंड साइड में 3 है, राइट. तो इसे हमें 2 में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग यूज़ क्या करते हैं, कास्केडिंग, राइट. सो S प्रोड्यूसेस, यहाँ से एक वेरिएबल लिया P एंड C2. C1 ऑलरेडी है इसीलिए C2 कास्केडिंग के लिए अप्लाई किया हमने, राइट. सो C2 प्रोड्यूसेस, बचे हुए 2 ही है तो डायरेक्टली 2 दे दिए. क्लियर. सो ये हो गया हमारा इन CNF form, right. Now S produces PQ is already in CNF form, QP भी already है, C0P भी already है, 0 already है, C1Q already है, 1 already है, C0P और 0 already है, C1Q और 1 already है, C0 0 एंड C1 1. ये बाकी सारे क्या है, already in CNF form है. Clear. So the final production in CNF form is given by S produces PC2 or PQ or QP or PP or C0P or 0 or C1Q or 1 and C2 produces QP, P produces C0P or 0, Q produces C1Q or 1 and C0 produces 0, C1 produces 1. So this is the final production which is in Chomsky normal form. Clear. Now we will take one more example on this. So check whether the given grammar is in CNF. So ये grammar given है, ये CNF में है या नहीं वो चेक करना है. If it is not in CNF, find the equivalent CNF. ठीक है. तो अब हमें क्या करना है, वही फाइंड आउट करना है. तो ये CNF फॉर्म में है क्या, नहीं है. तो पहले हमें इसका आंसर देना होगा, राइट. सो द गिवन ग्रामर नॉट इन CNF, राइट. कौन सा CNF में नहीं है, द फॉलोइंग प्रोडक्शन आर नॉट इन CNF, राइट. सो द फॉलोइंग productions are not in CNF. कौन से प्रोडक्शन नहीं है, सिर्फ A प्रोड्यूसेस स्मॉल a एंड B प्रोड्यूसेस स्मॉल b, ये CNF में है, बाकी सारे है क्या, नहीं है. सो S प्रोड्यूसेस BA और AB, A प्रोड्यूसेस BAA और AS एंड B प्रोड्यूसेस ABB और BS. ये प्रोडक्शन CNF में नहीं है. सो हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट CNF प्रोडक्शन फाइंड आउट करना है. सो फाइंडिंग एन इक्विवेलेंट CNF. ठीक है. तो क्या हो जाएगा, स्टेप 1 क्या आ जाएगी इसमें,
simplification of grammar, right? Simplification of grammar. So ये grammar already simplified है क्योंकि इसमें इप्सिलॉन प्रोडक्शन प्रेजेंट है क्या? नहीं है. यूनिट प्रोडक्शन प्रेजेंट है क्या? नहीं है. सो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, राइट? ऑलरेडी सिंप्लीफाइड. ठीक है. तो सेकेंड स्टेप क्या है? स्टेप 2, एवरी सिंबल अल्फा इन प्रोडक्शन कौन से फॉर्म में होना चाहिए? लेंथ ऑफ 2 मीन्स सारे वेरिएबल्स होने चाहिए, राइट? सो एवरी सिंबल अल्फा इन द प्रोडक्शन of the form A produces alpha with determinant of alpha is greater than 2 should be a variable होने चाहिए, राइट? सो ये क्या करेंगे हम लोग? दिस कैन बी डन बाय एडिंग 2 प्रोडक्शन. किसके जगह पे? A के जगह पे CA डालेंगे और B के जगह पे CB डालेंगे, राइट? सो वही डाल करते हम लोग. दिस कैन बी डन बाय एडिंग टू प्रोडक्शंस. क्या करेंगे हम लोग? ए के जगह पे CA डालेंगे एंड B के जगह पे CB डालेंगे, लाइक दिस, राइट? सो द सेट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा देन? Therefore, the set of production becomes P1 is equals to क्या हो जाएगा? So see here, S produces small b capital A small a capital B. तो क्या हो जाएगा? CB capital A और CA capital B. S produces, right? S produces CA capital A और CB capital A और CA capital B. A produces क्या हो जाएगा? CB AA और CAS और A. B produces CA capital B और CBS और B. And CA produces A, CB produces B, right? ये हो जाएंगे. क्लियर? नाउ थर्ड स्टेप क्या है हमारी? कन्वर्ट दिस इनटू CNF फॉर्म, राइट? So step 3, convert into CNF. तो CNF कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ओरिजिनल प्रोडक्शन एंड इक्विवेलेंट CNF प्रोडक्शन, राइट? तो क्या हो जाएगा? S produces CBA. ये ऑलरेडी है CNF फॉर्म में, यस. तो S produces CBA ऑलरेडी आ जाएगा. S produces CAB, तो ये भी ऑलरेडी है, सो CAB. नाउ A produces CBAA. ये है क्या? नहीं है, तो इसे कन्वर्ट करना होगा बाय अप्लाइंग कास्केडिंग, राइट? तो A produces C1 produces AA, right? Now same A produces CAS already in CNF, yes or no? So A produces CAS already in CNF. A produces A, this is also in CNF. B produces CABB, ये है क्या? नहीं है, तो कास्केडिंग करेंगे. सो BA produces C2 and C2 produces BB, right? Now
B produces CBS already in CNF, so CBS. B produces B already in CNF, so B produces B. CA produces A already in CNF, CB produces B already in CNF, right? So क्या हो जाएगा? Therefore set of final production in CNF क्या हो जाएगा? S produces CBA or CAB, A produces CB C1 or CAS or A, C1 produces AA, B produces CA-C2 or CBS or B, C2 produces BB, then CA produces A, CB produces B. हो गया. So clear?